Good evening, student. And today we are going to discuss some numerical on the different approaches of the convolution encoder. As we know, there are the three approach, that is time domain and transfer method, and then finally the matrix method. And today we are going to discuss about the time domain approach. Now let us consider a numerical for the convolutional encoder determine the following first one is the dimension of the code, second one code rate, constraint length, and fourth one is the generating sequences, and fifth one is the output sequence for message sequence of m is equal to 10011, and its block diagram like this. There is a 2 flip-flop, here is the adder, modulo adder, two, this is output, flip-flop 1, flip-flop 2, current, message, bit small m, we can say that message sequence. ओके तो ये आपका है, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है। इसमें आपका दिया हुआ है कन्वोल्यूशन इनकोडर, ये कन्वोल्यूशन इनकोडर का फिगर है। and determine the following, that is dimension of the code, what is the dimension of the code, then next code rate, then constraint length, then generating sequence, and then output sequence for the message sequence, that is m is equal to 10011, and here is the encoder diagram. Now the first step, that is the dimension of the code. What is the dimension of the code? Now solution,
Now the first step is the dimension of code. डायमेंशन ऑफ कोड मीन्स आपका इनपुट कितने बिट का होगा और आउटपुट कितने बिट का होगा. तो फ्रॉम हियर वी आर ऑब्जर्विंग द डायग्राम ऑफ द कन्वर्जन इनकोडर. हियर वी कैन सी दैट if we put the one input at the input terminal and we get the two output, means for a single bit input we get the two output in the form of the 1 and 2. So here we can say that that is according to the figure, according to encoder k dash is message bit is of the 1 bit and n that is encoded bit that is of 2. So now dimension which can be written like this is equal to n comma k is equal to 2 comma 1. This is the solution of the part first. Okay, simply here we can see that how much how many bits of the message and how many bits of the encoded means after the coding. And according to the encoder figure, here we see that the input are taken from this side, that is one by one. If we take the one input at a time, and there we get the two output, so simply we can say that the message bit of the one and encoded bit of the 2 bits. So then dimension just like written in the form of the linear block code, that is the n comma k. And finally here the value of n is equal to 2 and the value of k is equal to 1. Now second, code rate. As we know, the formula of the code rate R is equal to k upon n. In this case, the value of k is equal to 1 and small n is equal to 2, and finally we get the code rate of the 0.5. This is the part 2. After that, the third part, that is about the constant length. This is the very important parameter and also some numerical. ये parameters आपके given होते हैं, तो हमें ये decide करना होता है कि हमारा किसके according हमारा ये decide होता है. Then constant length जो third part हमारा है, constant length simply हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये डिफाइन करता, वो ये बताता है कि कोई भी आप मैसेज बिट अगर आप देते हैं तो उसको देने से आपका आउटपुट, या कह लो कि वो मैसेज भी कितने बार आपको शिफ्ट हो रहा है. सिंपली वी कैन से दैट कितने टाइम एक मैसेज बिट देने के बाद कितने टाइम आपका आउटपुट चेंज होगा. लेट अस कंसीडर इफ वी टेक द इनपुट फ्रॉम दैट साइड, if we put the input that, then we calculate the output one time, and after the one shifting, this message bit shifted to this place, and again we calculate 1 and 2, and after that this bit, and after the one again shifting, this shifted to this place, again we get the output. Means a single message can produce the 3 time output. Means here we can say that the constant length is of the 3, that is equal to k is the symbol is equal to 3, that is 3 bits. This is the constant length. मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट लेंथ वह लेंथ होता है कि आप इनपुट देने के बाद उस बिट्स के वजह से कितनी बार हमारा आउटपुट इफेक्ट करेगा. लाइक इन दैट केस द आउटपुट इन affected by the 3 time. Okay, so like the 3 part are calculated like this, that is dimension of the code, then code rate, and then constant length. After that, now वन थिंग मोर, हम यहाँ पे एक कोड को और रिप्रेजेंट कर देंगे. हमने यहाँ पे लिख दिया x1 लिख दिया, और हम यहाँ पे लिख देंगे ये x2, सॉरी x2 के फॉर्म में हमने इसको नेम कर दिया, ऐसे इंडिकेट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट अबाउट द जनरेटिंग सीक्वेंस code part is the, this is very important role of generating sequence. Generating
sequences. Consider, observe x1 is generated by adding all the 3 bits. ओके, लाइक दिस वन आप फिगर में अगर ऑब्जर्व करेंगे x1 हमारा है, ये तीनों का हमारा क्या है, एडिशन आपका, हमने इसको राइट कर दिया एंड देन जनरेटिंग सीक्वेंस gi1 इज इक्वल टू 1 1 1. ओके, हमने आपसे बोला था जैसे ये आपका ये लिखा हुआ है 1 1 1 मीन्स आपका जो आउटपुट जो हो रहा है ये x1 जो है वो तीनों के कनेक्शन का है. ठीक है, हम 1 उस केस में लिखते हैं जब आपका आउटपुट उससे कनेक्टेड मीन्स आपका जो इनपुट है वो मॉड्यूलो से कनेक्टेड हो या आउटपुट से कनेक्टेड हो. तो अगर हम लिखना चाहें, हमने अब इंडेक्सिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, हियर इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट द 0 1 2, हम इंडिकेट करते हैं. अगर हम लिखना चाहें हियर G01 is equal to 1, represent connection of M 1 1 is equal to 1, represent connection of bit M1 and G21 1 of राइट, इसको हम M नॉट लिखते हैं, दिस इज M नॉट, ये आपका हो गया, या बिट M ही लिखिए आप इसको. ठीक है, तो दिस इज जनरेटिंग सीक्वेंस, ये हमने जनरेटिंग सीक्वेंस इंडिकेट किया हुआ है आपको जो दिख रहा है इस तरीके से. सिमिलरली x2 is generated by adding first and third bits generating sequence gi2 is equal to 1 0 1, इस तरीके से होगा. ठीक है, नाउ इन एक्सपेंडेड फॉर्म व्हाट्स इट्स वैल्यू, अगर हम लिखना चाहेंगे तो आपका G02 is equal to 1, represent of bit M. After that G12 is equal to 0, represent M1 is not connected, and then G2 1 represent connection of bit M2. ओके, तो हियर द इम्पॉर्टेंट रोल इज, ये आपका जनरेटिंग सीक्वेंस है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. हमें बस यही देखना है कि इस तरीके से आपके जो है आपका जो इनपुट से आउटपुट कनेक्टेड है, वो चीज़ देखना है. ठीक है, तो दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
जो चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, दिस इज अबाउट द जनरेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं ब्रीफ कर दूं अबाउट, जो काफ़ी हमने लेंदी लिखा हुआ है, अगर हम देखना चाहें मीन्स आगे यूज होगा, सिंपली वी कैन से दैट इसका हमें यूज भी करना है, हम आगे देखते हैं। लाइक दैट इज G01 and G11 and G21, 1 is equal to 1 is equal to 1, ये आपका जेनेटिक सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली G02 is equal to 1, G12 is equal to 0 and G22 is equal to 1। ओके, तो दिस इज जेनेटिक सीक्वेंस। तो आई थिंक ये हमारा जेनेटिक सीक्वेंस हो गया। अब बाकी हमें लास्ट स्टेप करना, थोड़ा सा लेंदी है वो, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ये न्यूमेरिकल आप लोग, ये सेमेस्टर में आता भी है। नाउ ये हो गया, एंड आफ्टर दैट एंड टू ऑब्टेन द सीक्वेंस, फिफ्थ स्टेप दैट इज फिफ्थ, टू ऑब्टेन the sequences, there is a message m is equal to m0, m1, m2, m3 or m4, and after that this will be equal to 1 0 0 1 1। ये आपका दिया हुआ है, हमने इसको मैसेज के फॉर्म में राइट किया हुआ है। मीन्स हियर m0 is equal to 1 and m1 is equal to 0, m2 is equal to 0, m3 is equal to 1 and m4 is equal to 1। okay, as we know, now to obtain output due to adder 1, as we know the formula xi1 is equal to summation L is equal to 0 to capital L m GL 1 m I माइनस L, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला ऑलरेडी है। अगर हम देखेंगे हमारा जो L है वो 0 टू m जा रहा है, और m आपका जो होता है वो कांस्टेंट लेंथ होता है। ठीक है, जो चीज़ें था मीन्स ओवरऑल कांस्टेंट लेंथ आर सिंपली हियर यू कैन से दैट इज m, जो m की वैल्यू होगी वो आपकी होगी k माइनस 1। in this case the, as we know the value of k is equal to 3 means that the value of m is equal to up to 2, वो आपका 0 1 2 होगा। इस तरीके से हमें ध्यान देना है। वन थिंग मोर, एंड हियर आई सिंपली ये इंडेक्सिंग यूज किया गया है बिकॉज हमें यहाँ पे आई की वैल्यू को चेंज करना, दैट इज फ्रॉम 1 टू जितना भी जाए एटलीस्ट, जैसे आपका ये मैसेज बिट दिख रहा है ये 4 तक गया है तो एटलीस्ट हमें 5 6 तक चेक करना पड़ेगा। दिस इज यूज फॉर द इंडेक्सिंग एंड डिपेंड अपॉन क्या क्या गिवन, उसके अकॉर्डिंग हम कितने वैल्यूज तक लेके जाएंगे हम। एंड ऑल्सो हमारा जो आई होता है, जैसे इस केस में 2 × 3 होता है, मीन 3 हमारा जो कांस्टेंट लेंथ होता है और 2 हमारा जो आउटपुट होता है इनकोडेड आउटपुट। तो हियर इनकोडेड आउटपुट की वैल्यू जो 3 है और सॉरी 2 है, और जो कांस्टेंट लेंथ की वैल्यू 3 है, मीन्स आई हमारा 6 तक रेंज करेगा। तो इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। हियर ऑल्सो वन थिंग, अ क्वांटिटी दैट इज m i माइनस l। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको पता है दैट इज m i माइनस l इज इक्वल टू 0 व्हेन l ग्रेटर देन i, हमें इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी टेक x 0 1 मीन्स पुट i इज इक्वल टू 0। जब i इक्वल 0 आपने प्लेस किया तो आपके फार्मूले में क्या चेंज आएगा, इज इक्वल टू समेशन l इज इक्वल टू 0 m और GL1, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा
m, और ये आपका हो जाएगा माइनस एल। ओके, ये आपका दिख रहा है, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस एल आ रहा है, तो ये सिंपली दिस क्वांटिटी कैन बी रिप्लेस बाय क्वांटिटी, यहाँ पे माइनस एल है, ठीक है। अगर आप वन बाई वन आप ये वैल्यूज अगर आप प्लेस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी पुट द फॉर समेशन वी पुट द एल इज इक्वल टू 0 1 2 प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 0 होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 2 होगा। इन दैट केस सिंपली आप इसको एम नॉट से प्लेस कर देंगे, मीन्स इट्स वैल्यू इज जस्ट लाइक, अगर आप इसको यहाँ प्लेस करेंगे यहाँ पे, एंड हियर ऑल्सो इफ यू टेक द एल, एल इज इक्वल टू 0, हम पहला लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एल की जगह 0 होगा, G01 इंटू एम नॉट। आई थिंक आपकी और कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे। ओके, एंड वन थिंग एज यू नो, G01 आपका जो दिख रहा है वो 1 हो गया, और एम नॉट हमारा क्या हो गया, वो 1 हो गया, वी गेट 1, ये आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिमिलरली इसी का हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को वन बाई वन। आफ्टर दैट पुट I is equal to 1, then x 1 is equal to summation L is equal to 0 m GL1 and m 1 माइनस एल, ये वैल्यूज होगी। तो वन बाई वन टेक द वैल्यू ऑफ एल, अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द जीरो, अगर आप जीरो प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी जी नॉट, और ये आपका होगा इफ G01, और यहाँ पे आपका हो गया जीरो प्लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, M1 प्लस, अब जब यहाँ पे इसको वन मीन देखो, अब जब आपने जीरो प्लेस किया तो एल की जगह जीरो हो गया, और यहाँ प्लेस करेंगे तो G0 1 और M1 हो गया। अगेन इफ यू प्लेस L इज इक्वल टू 1 जब प्लेस करेंगे तो L इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा आपका, ये होगा G11, और ये आपका होगा M0। ओके, ओके दिस इज राइट। ओके, एंड आफ्टर दैट हियर इज द मॉडुलो ऑपरेशन, ये आपका मॉडुलो ऑपरेशन होगा, इज इक्वल टू आप प्लेस करेंगे G01 हमारा 1 है, और M1 हमारा क्या है, वो 0 है, XOR ऑपरेशन, देन G11 हमारा 1 हो गया, और M1 हमारा 1 है, मीन्स ये हो गया, इज इक्वल टू 0 XOR 1 इज इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। सिमिलरली पुट I is equal to 2, x21 is equal to summation L is equal to 0 to m GL1 माइनस L। अब हम प्लेस करेंगे जीरोस को, जीरो प्लेस किया आप G01, और यहाँ पे करेंगे M2 प्लस, और फिर आपका होगा G11, और आपका ये होगा M1 प्लस, अगर हम 2 प्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका G1, और ये आपका होगा M0, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या फाइंड हुआ आपका, ऑप्शन देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी G01 आपका 1 हो गया, और M2 आपका हो गया 0, प्लस G11 1 हो गया, और M1 आपका हो गया 0, फिर G21 आपका 1 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। फाइनली 0 0, ये अगेन वी गेट 1। आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 0 0, एंड अगेन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका ये 1 हो जाएगा, एंड फाइनली वी गेट 1। इस तरीके से आपने सॉल्व किया, देन अगेन पुट I is equal to 3, x31 summation L is equal to 0 m GL1 M3 minus L is equal to, अगेन प्लेस करेंगे आप G01 M3 हो गया, प्लस 1 1 M2 हो गया, प्लस
G21 और यहाँ पे 2 रखेंगे, दैट इज M1 हो गया, प्लस अगेन अब हम यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 बेस हमें 2 तक ही लेना है, तो ये आपकी वैल्यूज हो गई। देन वी गेट 1 और M3 आपका है वहाँ पे 1 इंटू 1 एक्सॉर ऑपरेशन हो गया, और G11 इसकी वैल्यू 1 है और M2 आपका है मल्टीप्लाई बाय 0, देन एक्सॉर ऑपरेशन, देन G21 अगेन 1 और आपका जो है M1 आपका जो गिवन है वो आपका है 0। अगेन आप जब इसको सॉल्व करेंगे वी गेट, ये आपका 1 हो गया, ये आपका हो जाएगा एक्सॉर 0 0 एक्सॉर 0, देन अगेन वी गेट 1, इसकी आपकी वैल्यू मिली 1, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हमें प्लेस करना है पुट I इज इक्वल टू 4, जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका x4 1 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 0 टू M एंड GL M4 माइनस L इज इक्वल टू, आप इसको प्लेस करेंगे तो आपका क्या होगा, पहले मैं 0 रखेंगे, G0 1 और ये आपका हो जाएगा M4 एक्सॉर फिर G1 1 और ये आप रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे तो M3 हो जाएगा, प्लस G21 रखेंगे और जब यहाँ पर 2 रखेंगे दैट इज M2, यही वैल्यू होगा। देन इज इक्वल टू 1 इंटू M4 आपका है, अब वो वैल्यूज आपकी M4 जो होगी वो आपकी है 1 एक्सॉर 1 और M3 भी आपका क्या है 1 है, फिर एक्सॉर ये 1 हो गया और M2 आपका जो है वो है 0, देन वी गेट 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर सॉरी 1 एक्सॉर 0, वी गेट 0, ठीक है। देन पुट I is equal to 5, x51 is equal to again summation L is equal to 0 to M GL1 M5 minus L is equal to, हम 0 रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस 0 G01 M5 प्लस G11 M4 प्लस G21 M3, और कोई वैल्यूज आपकी होंगे नहीं, बिकॉज अगर और कोई वैल्यू इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो सब आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका होगा। एंड आफ्टर दैट M5 तो हमारा है नहीं, हमारा M4 है, तो 1 इंटू 1 एक्सॉर ऑपरेशन, ये G21 आपका हो गया 1 इंटू और M3 भी मुझे लगता है आपका 1 है, अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो आपकी ये मिली, मैं ब्लॉक में लिख दे रहा हूँ, एक वैल्यू आपकी ये रही, एक आपकी वैल्यू ये थी और एक आपने ये फाइंड किया, एक आपने ये फाइंड किया और एक आपने ये फाइंड किया, ठीक है। अब एक और वैल्यू कैलकुलेट करना आपको है, तो थोड़ा सा मैं इसको जरा एक चीज़ में राइट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रब करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपकी जो वैल्यू फाइंड हुई थी दैट इज x1 इज इक्वल टू xi1 इज इक्वल टू, हम स्टार्टिंग वैल्यू लिख दें 1 1 क्योंकि आपका ये पहले हम i इज इक्वल टू 0 पे था, 1 मिला 1 1 4 टाइम 1, ठीक है, और अभी आपको 2 टाइम 0 मिला हुआ है, देन 2 टाइम 0। अब ये एक वैल्यू आपको और फाइंड करना, अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पे, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अगेन पुट
I is equal to 6 1 is equal to summation L is equal to 0 to M GL1 M 6 minus 1। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 6 माइनस 0 M6 नहीं है, फिर हम यहाँ सीधे जो 2 रखेंगे, सीधे हमारी जो वैल्यूज आएगी वो आपकी आएगी G21 और M4 1 इंटू और M4 आपका जो दिख रहा है वहाँ पे 1 हो गया, वी गेट 1 अगेन ही गेट 1 दिस। इसके बाद कोई हमारी वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि फर्दर वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो ये आपको दिख रहा है किस तरीके से पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो चीज़ें लिखी गई हैं इस तरीके से वी गेट x1 इज इक्वल टू xi1 ब्रैकेट में आपका मिला आपका 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा था क्या कहते हैं एडर 1 से जो आउटपुट मिल रहा था। तो आई थिंक आप लोग समझ के आ गया होगा पहले हमने किस तरीके से हमने वैल्यूज को प्लेस किया हुआ है, 1 बाई 1 हमने वैल्यूज लिया i इज इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक हमने लिया हुआ है। 7 आई कोई मतलब है नहीं, बिकॉज हमारा जो जनरेटिंग सीक्वेंस है हमारा वो जी एल की वैल्यू 2 तक ही जा रहा है, डिपेंड करता है, आगे लेने कोई मतलब नहीं है नहीं, बिकॉज जो बिट्स हमारे आएंगे वो इसके बाद क्या आएंगे M5 M6 X7 जिसका यूज आपका है नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ये आपका 1 के लिए रहा, अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड के लिए। Now, for similarly, x2 is equal to xi2 summation is equal to L is equal to 0 to M GL2 M I minus L, वही फॉलो होगा आपका। अगेन पुट i इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x01 मिलेगा इज इक्वल टू समेसन L इज इक्वल टू 0 टू M, और ये आपकी वैल्यू होगी GL2, और यहाँ पे जब आप यहाँ पे हमारा 0 पुट किया था हमने, लिखे यहाँ पे M 0 माइनस L, फिर हम जब लिमिट प्लेस करेंगे तो यहाँ पे बस पहली वैल्यू चलेगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी M0, तो आपकी वैल्यू क्या होगी G02 इंटू M0, और G02 की जो वैल्यू आपकी है वो 1 है, और M0 की वैल्यू भी क्या आपकी है 1 इंटू 1 दैट इज 1, ये आपको मिल गई, ठीक है। देन पुट I इज इक्वल टू 1 x11 इज इक्वल टू समेशन L इज इक्वल टू 0 टू M GL2 M1 माइनस L, देन प्लेस 1 बाई 1 वैल्यू L इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो क्या होगा G02, और यहाँ पे हो गया M1 प्लस, और फिर हम जब प्लेस करेंगे L इज इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, तो L इज इक्वल टू 1 जब प्लेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे G12 M0, यही दो वैल्यू आपकी होगी, और मैं देख लेता हूँ चेक कर लूँ, हाँ तो आपको G02 जो आपका है G02 आपका 1 था, और M1 क्या आपका है M1 आपका है 0, देन एक्सॉर ऑपरेशन, और G12 हमारा 0 हो गया और M0 आपका 1 हो गया, देन 0 एक्सॉर 0 इज इक्वल टू 0, ओके। देन 2 x2 to summation L is equal to 0 to M GL 2 M2 minus L is equal to 0 to
प्लस G12 1 प्लस G22, तो ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी, क्या वैल्यू आपका है, G2 आपका है 1 और M2 आपका हो गया 0, XOR ये भी 0 है, और M1 भी आपका क्या है 0 हो गया, XOR ये 1 हो गया, और M0 आपका 1 हो गया। अगेन दिस वैल्यू, ये आपका वैल्यू मिलेगा 1, आपकी ये वैल्यू मिल रही है आपकी है, एक वैल्यू आपका ये रहा, एक वैल्यू आपका ये रहा, और एक आपकी वैल्यू ये रही, ठीक है। वी गेट 1। नाउ पुट I is equal to 3, x 3 2 summation L is equal to 0 to M GL2 M3 minus L is equal to G02, और ये आपका हो गया M3 XOR G12, और ये आपका हो गया M2 XOR और G22, ये आपका हो गया M1, ठीक है। अगेन प्लेस वैल्यू G02 की जो वैल्यू आपकी है दैट इज 1, और M3 आपका है 1 into 1 XOR, और G12 की जो वैल्यू है G12 ये आपका 0 है, 0 into, और M2 आपका क्या है 0 XOR, और G1 और M इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी 0 है। वी गेट 1 into 1, बाकी 0 आ रही है, वैल्यू मिल गई आपकी 1। अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। देन पुट I is equal to 4, x4 2 is equal to summation L is equal to 0 to M GL2 M4 minus L, क्या हो जाएगा आपका G02, और ये हो जाएगा M4 प्लस G12 M3 प्लस G22 M2, ये आपकी वैल्यूज़ मिलेगी, और यहाँ पे जब वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे आप, तो ये G2 वैल्यू आपकी 1 होगी, और M4 आपका 1 हो गया। देन XOR ऑपरेशन 0, और M3 आपका हो गया 1, XOR ऑपरेशन G22 1 हो गया, और M2 आपका क्या अगेन 0। वी गेट यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी ये 2 0 मिल रहा है, देन वी गेट 1, अगेन वी गेट 1, आपको वैल्यूज 1 मिल गई, ठीक है। देन मैं इसको भी यहाँ भी लिख देता हूँ सिमिलरली, जो आपका x2 होगा xi2 और इज इक्वल टू वैल्यू जो मेरी फाइंड हुई है हमारा 1 0 एंड 1 1 1। अब क्योंकि एक्चुअली मैंने वैल्यू राइट किया बिकॉज हमें और सॉल्व करना आगे, अब हमें i इज इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू 6 के लिए कैलकुलेट करना है, हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा, तो आगे स्टेप में देख लेते हैं। हम यहाँ पर है नाउ टेक पुट I is equal to 5, then that is x51 is equal to summation L is equal to 0 to M GL2 and M5 minus L is equal to 0 आप प्लेस करेंगे तो क्या होगा G02 into M5 plus G12 into M4 XOR G22 M3, बाकी और कोई वैल्यूज आपकी होनी नहीं बिकॉज हमारा ये G22 तक गया हुआ है, और ये वैल्यूज आपके M5 तो है नहीं, सिर्फ आपका M4 M3 है, और ये वैल्यू 0 हो गई, और M4 आपका है दैट इज 1। XOR ऑपरेशन G22 आपका जो है 1 है और इनटू, और M3 आपका है 1, ओके। 0
XOR 1 is equal to 1, अगेन दिस वैल्यू एक और आपका 1 आ गया। एंड फाइनली पुट I is equal to 6, we get 6 1 is equal to summation L is equal to 0 to M GL to M 6 minus L। ओके, तो बाकी तो अगर हम वैल्यूज प्लेस करेंगे 0 पे तो M6 आ जाएगा, जब 1 प्लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सीधे हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, 2 प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा G22 इंटू ये आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे दैट इज M4 और G22 आपका 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अभी कैलकुलेट हो गई। आफ्टर दैट अब हमें कैसे राइट करना है ये आपको मिल गया। तो ये प्रोसेस जो आपको बताया गया ये आपका टाइम डोमेन अप्रोच है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज हमें कैसे फाइंड हो रही हमने उसको बता दिया। नाउ द फाइनली हियर वी गेट द जनरेटिंग मीन्स फाइनली द आउटपुट सीक्वेंस जो आपको मिला वो आपको ये मिला हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ। आउटपुट सीक्वेंस आपको मिला x1 इज इक्वल टू xi1 इज इक्वल टू 1111001। एक तो आपको ये मिला और एक आपको x2 इज इक्वल टू xi2 इज इक्वल टू 105 टाइम 1, ये आपको मिला। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लेक्स करना होगा, इन वैल्यूज को मल्टीप्लेक्स करना होगा, मीन्स टू ऑब्टेन multiplexed sequence of x1 and x2 we can write like xi is equal to x01 x02 x1 1 x12 x21 x22 x31 x32 x41 x42 x51 x52 and s61 and x62 ये लिखेंगे हम। वैल्यूज हमने फाइंड किया हुआ है एंड वी गेट पहला आपको ये 1 1 है, 1 1 कॉमा 1 0 कॉमा अगेन 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 0 1 कॉमा 0 1 कॉमा 1 1 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका मिला मल्टीप्लेक्स आउटपुट आपको मिला हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल में डिस्कस किया हुआ है वो आपको टाइम डोमेन अप्रोच था। उसमें टाइम डोमेन अप्रोच में ये होता है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एंड हाउ बाय यूजिंग द जनरेटिंग सीक्वेंस हाउ दिस जनरेटिंग सीक्वेंस यूज्ड टू जनरेट द आउटपुट सीक्वेंस हमने बता दिया मैंने आपको। एंड आफ्टर दैट हियर वी गेट वैल्यूज x1 एंड x2 कैसे वैल्यूज मिला हुआ है एंड देन देयर इज द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट दिस वन। तो ये आपका टाइम डोमेन अप्रोच था, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी फार्मूलेस थे, फिर जैसे फार्मूले में जो फार्मूला था एम आई माइनस एल था, किस तरीके से हमने कहाँ पे वैल्यूज को जीरो प्लेस किया हुआ है, कहाँ सीधा हमने एम नॉट लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें थी आपकी। ठीक है, तो बाकी हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू, कर दीजिए।